Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope your studies are going well and you all are completing your exercises also. You know that we are doing chapter 1, that is 3-digit numbers. And so far we have completed many of the exercises of the chapter. Children, we have done forward counting from 101 to 1000 we have completed. Then we have also completed number names, spelling of the numbers, writing the numbers, number names in figure also we have done. Then we have done what comes after, before and between. Then a 3-digit number on abacus also we have completed. Then writing the numbers according to the place and place value, that also we have done. Then we have done expanded form. In the previous video we completed expanded form also. So in today's video I'm going to start another exercise of the chapter 1. Children, it is related to 100. Children, it is given on page number 31, place value and face value. This we are going to do today. Page 31, place value and face value. I'm going to explain you this and we will do the exercises related to this. Topic is PLACE, place, VALU, place value and face value. Place value and face value. Children, as we have already done expanded form हम already कर चुके हैं और expanded form पर ही based है ये place value and face value. Expanded form जैसे हमने किया था, एग्जाम्पल ले लेते हैं 4, 6, 5. ठीक है, ये एक नंबर है, 3-digit नंबर है. Here 4 is HUNDRED, X is 400, sorry 4 is 100, then 6 is tens and 5 is ones. This we have done ना, ये expanded form हम कर चुके हैं. तो 400 हम figures में कैसे लिखते हैं? ऐसे 6 tens is 60 and 5 ones is like this. So 465. This is the expanded form. Now here let's understand that the number 5 is at ones place. Number 5 जो है वो ones की place पर है. ठीक है, यहाँ आप देखेंगे number 5 जो है वो ones की place पे है. इसका मतलब इस number का जो place value है, the place value of this number is 5 only. Wait a minute. So children, here the place value of 5 is 5 only. Place value 5 का 5 ही है. 5 ones means 5 and its face value is also 5. Face value मतलब नंबर का जो लुक है, नंबर जो हमें दिख रहा है, that is the face value. जो हमें नंबर दिख रहा है that is face value. और उस जिस जगह पर, जिस प्लेस पर है, वहाँ की वैल्यू क्या है जो उस नंबर को मिलेगी, दैट इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू. जैसे अब ये 6 है, 6 का प्लेस वैल्यू क्या है? 6 टेंस है. 6 का प्लेस वैल्यू क्या है? 6 इज टेंस मतलब 60. उसके प्लेस के 6 के प्लेस की वैल्यू है 10, है ना. 6 की प्लेस, जिस प्लेस पर 6 है वो है टेंस. तो इसी के अकॉर्डिंग 6 का जो वैल्यू है वो 60 हो गया. क्यों 60 हो गया? 6 इज 60. 6, ये जो नंबर 6 है, इट इज़ एक्चुअली 60. क्यों 60 है? क्योंकि ये टेंस की प्लेस पर है. 6 टेंस इज 60. लेकिन इसका जो फेस वैल्यू है वो 6 ही है, क्योंकि नंबर जो हमें दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है. लेकिन वो जिस जगह पर है वहाँ की वैल्यू के अकॉर्डिंग वो 60 है. तो place value is 60 and face value is 6. Same for 4. This 4 is at hundreds place. 4 जो है वो 100 की प्लेस पर है, इसीलिए 4 का वैल्यू है, प्लेस वैल्यू है 400. 400 क्यों? क्योंकि 400 की प्लेस पर है. So its place value is
400, लेकिन इसका फेस वैल्यू क्या है? एक्चुअली में ये नंबर फिगर में क्या है? 4 है। तो फेस वैल्यू तो 4 है, लेकिन प्लेस वैल्यू 400 है। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है? फेस वैल्यू मतलब जो नंबर एक्चुअली में है, जो दिख रहा है, दैट इज़ द फेस वैल्यू। ओके, 2, 3, 4, 5 से जो भी हमें नंबर दिख रहा है दैट इज़ द फेस वैल्यू। लेकिन वो जिस प्लेस पे है, अब वो प्लेस आप देखिए कि किस जगह पर है, और फिर उसकी वैल्यू उस नंबर के साथ अटैच हो जाती है। जिस भी प्लेस पे वो नंबर होगा, वो प्लेस की वैल्यू उस नंबर के साथ अटैच हो जाती है। ठीक है, अगर 4 यहाँ पर 100 की प्लेस पर है तो 400 हो गया, क्योंकि 400 की प्लेस पर है, इसलिए 4 की वैल्यू हो गई 400। ठीक है, अगर यही 4 टेंस की प्लेस पे होता तो 4 टेंस होता, तब उसकी वैल्यू 40 होती। अगर 4 वंस की प्लेस पे होता तो उसकी प्लेस वैल्यू 1 होती। क्यों? क्योंकि उस जगह की वैल्यू 1 है। ठीक, तो नंबर जो दिख रहा है वो फेस वैल्यू है, जिस प्लेस पर है, और उस प्लेस की वैल्यू अटैच होने से उस नंबर का प्लेस वैल्यू बन जाता है। यू विल डू एग्जाम्पल एंड देन यू विल अंडरस्टैंड इवन मोर बेटर। देखिए, कुछ एग्जाम्पल और ले लेती हूँ। जैसे हमने लिया 6, 3, 9। ओके, अब आप जब ऐसे देखेंगे ना तो आपको सबसे ज़्यादा नंबर तो 9 लग रहा है ना। 9 ज़्यादा होता है 3 से, 6 से भी ज़्यादा होता है 9, है ना। 9 जो है 3 और 6 दोनों से ज़्यादा होता है। कैसे? अगर आपके पास 6 टॉफ़ीज़ हैं और किसी के पास 9 टॉफ़ीज़ हैं, तो किसके पास ज़्यादा टॉफ़ीज़ होंगी? डेफिनेटली जिसके पास 9 टॉफ़ी है उसके पास तो ज़्यादा टॉफ़ी है ना। सपोज मेरे पास 3 टॉफ़ी है और किसी के पास 6 टॉफ़ी है, तो हम क्या बोलेंगे कि अरे उसके पास तो मेरे से ज़्यादा टॉफ़ी है, उसके पास 6 टॉफ़ी है। और किसी के पास 9 है तो वो हमसे ज़्यादा उसके पास टॉफ़ी है ना। तो 9 ऐसे दिखने में तो बड़ा नंबर लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में अगर हम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें, अगर नंबर की प्लेस वैल्यू देखें तो सबसे कम वैल्यू है 9 की। यस, 9 जो है वो 3 से भी कम है प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। फेस वैल्यू में तो 9 हमको ज़्यादा दिख रहा है, फेस वैल्यू 9 का फेस वैल्यू 9 है, 3 का फेस वैल्यू 3 है, 6 का फेस वैल्यू 6 है, जो नंबर हमको दिख रहा है वही। ठीक है, तो अगर फेस वैल्यू लिखते हैं, फेस वैल्यू, तो 9 का फेस वैल्यू 9 है, 3 का फेस वैल्यू 3 ही है, और 6 का फेस वैल्यू 6 ही है। ओके, तो ऐसे हम कहेंगे कि 9 ज़्यादा है 3 से और 6 से, दोनों से ज़्यादा है। लेकिन अब हम प्लेस वैल्यू की जब बात करेंगे तो प्लेस वैल्यू जब देखेंगे तो सबसे कम वैल्यू 9 का है। कैसे? अब देखते हैं प्लेस। 9 वंस की प्लेस पर है, 3 टेंस की प्लेस पर है, और 6 100 की प्लेस पर है। अब वो जिस प्लेस पर बैठे हैं वो वैल्यू अटैच हो गया। ठीक है, जिस जगह पे बिठाया गया है नंबर को, अब उसकी वैल्यू इसमें जुड़ गई। कैसे जुड़ गई? देखिए, 9 जो है वंस की प्लेस पर है, 9 वंस है। ठीक है, 9 वंस है, मतलब 1 1 1 9 टाइम्स है, 9 वंस है। तो 9 वंस मतलब प्लेस वैल्यू अगर देखें तो 9 का प्लेस वैल्यू 9 ही है वंस। एक बार 3 टेंस है, 3 का वैल्यू कितना है? टेंस। 3 टेंस मतलब 30। तो 3 का क्या है? 30 है, प्लेस वैल्यू 30 है। और 6 कौन सी जगह पे है? 100 की जगह पे है, तो ये 100 का वैल्यू 6 के साथ आ जाएगा। 600 हो गया। ठीक है, 6 सिर्फ 6 नहीं है, 600 है। ठीक है, तो इसका प्लेस वैल्यू है 600। नाउ यू कैन सी कौन सबसे ज़्यादा है? 600 सबसे ज़्यादा है ना, फिर 30 है, फिर 9 है। आई बात समझ में? तो किसी भी नंबर की वैल्यू है उसकी प्लेस वैल्यू पे यहाँ डिपेंड कर रही है। हम कैसे बोल सकते हैं कौन सा नंबर ग्रेटर है? 6 इज़ ग्रेटेस्ट। क्यों? क्योंकि 6 का प्लेस वैल्यू सबसे ज़्यादा है। सेकेंड पोजीशन किसका है? 3 का है, क्योंकि उसकी वैल्यू 30 है, 3 टेंस है, और सबसे कम वैल्यू 9 की है। ठीक है, क्योंकि वो वंस है। पर ऐसे हम देख रहे हैं तो हमें 9 सबसे बड़ा दिख रहा है फेस वैल्यू में, 3 सबसे छोटा दिख रहा है। ठीक है, तो फेस वैल्यू मतलब जो नंबर हमें जैसा दिखता है दैट इज़ द फेस वैल्यू। एंड प्लेस वैल्यू इज द पोजिशन ऑफ द नंबर, द प्लेस ऑन विच द नंबर इज, द वैल्यू इज अटैच्ड
the value of that place is attached to that number, and then that is the place value of a number. Okay, I hope ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना. अब इसको इरेज कर देते हैं और अब करते हैं कुछ एक्सरसाइज. फेस वैल्यू इज द डिजिट इटसेल्फ. याद रखिएगा, फेस वैल्यू इज द डिजिट इटसेल्फ. जो नंबर है वही फेस वैल्यू है, जो हमें दिख रहा है नंबर. डिजिट जो है इटसेल्फ इज द फेस वैल्यू, एंड द वैल्यू ऑफ दैट प्लेस, वैल्यू ऑफ द प्लेस अटैच टू द नंबर, देन इट बिकम्स प्लेस वैल्यू. जब उस प्लेस की वैल्यू नंबर के साथ जुड़ जाती है तो वो प्लेस वैल्यू हो जाता है. अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं राइट the PLACE place, VALUE value of the COLOURED colored digit, DIGIT. Now children, यहाँ colored digit लिखा है, but since हम तो यहाँ बोर्ड पर कर रहे हैं और कलर्ड डिजिट मैं आपको दिखा सकती हूँ विद यूजिंग कलर्ड चॉक, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कलर्ड चॉक उतना क्लियर आता नहीं. आई ट्राई, लेट मी ब्रिंग सम कलर्ड चॉक्स. Okay, I will show you with colored chalk. I will underline also and I will write it with colored. So जो word underline, जो letter, sorry, जो number underlined होगा वो समझ लेना. ऐसे मैं colored chalk से लिखने की भी कोशिश कर रही हूँ, if it is visible. I have got. चलिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं तो दिखेगा ही नहीं, not visible at all. Okay. 89 मैंने लिखा है. Children, I tried to write with yellow color, but that is also not looking very bright on the green board. ग्रीन बोर्ड पे बहुत ब्राइट नहीं दिख रहा है, पर चलिए मैं ऐसे अंडरलाइन भी साथ में कर देती हूँ, ठीक है, तो और क्लियर हो जाएगा. नाउ ये जो अंडरलाइंड नंबर है, अंडरलाइंड जो फिगर आपको दिख रहा है, नंबर दिख रहा है, इसका आपको क्या बताना है, प्लेस वैल्यू बताना है. यू हैव टू टेल द प्लेस वैल्यू ऑफ 9. 9 का प्लेस वैल्यू क्या है. पहले अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आए तो आप वन टेंस कर लेना. ये हमेशा आप दिमाग में रखिए. वेन एवर यू हैव कन्फ्यूजन, राइट वन सेंटेंस. आप ऐसे वन टेंस लिख सकते अपने समझने के लिए. अब 9 कौन सी जगह पे है, वंस की प्लेस पर है. वंस की प्लेस पे मतलब 9 जो है, 1 जो है वो 9 टाइम्स, तो 1 को 9 बार लिखेंगे तो 9 ही रहेगा, है ना. तो 9 वंस इज 9 ओनली, तो इसका प्लेस वैल्यू है 9. ओके, 9 का प्लेस वैल्यू 9 ही रहेगा. देन वी हैव 1 3 6 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 3. यू हैव टू टेल द प्लेस वैल्यू ऑफ 3. 3 का प्लेस कहाँ पर है, पहले प्लेस देखेंगे फिर प्लेस वैल्यू. वंस टेंस, 3 जो है वो टेंस की प्लेस पर है, तो टेंस का वैल्यू 3 के साथ अटैच हो जाएगा. 3 टेंस हो जाएगा. 3 टेंस मतलब 30. यस, सो इट्स प्लेस वैल्यू इज 30. ओके, प्लेस वैल्यू है 30. आप ऐसे भी लिख सकते हो 9 वंस या 3 टेंस, ठीक है, लेकिन हमको तो एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है, ठीक, 30 या 3 टेंस. नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 240 एंड यू हैव टू टेल द प्लेस वैल्यू ऑफ 2. 2 का आपको प्लेस वैल्यू बताना. आई होप ये येलो कलर दिखे बाद में. इट्स बेटर दैट आई राइट विथ वाइट चॉक ओनली, क्योंकि हो सकता है कि बाद में ये लाइट हो जाए और ना दिखे. एनीवे, दिस इज 2. ओके, आपको 2 का प्लेस वैल्यू बताना है, तो इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि वो कौन सी प्लेस पर है, तभी तो प्लेस की वैल्यू निकालेंगे ना. तो प्लेस क्या है उसका, वंस टेंस 100. प्लेस क्या है 100, तो 100 का वैल्यू इस नंबर के साथ जुड़ गया, 2 के साथ 100 अटैच हो गया, 200. प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 200.
200. ठीक है. Okay. Next number is 307. Here you have to tell value of 0. अब 0 कौन सी प्लेस पर है? वंस, टेंस किस जगह पे है? टेंस पर है. 0 टेंस इज 0. 0 के साथ किसी भी नंबर को आप इस तरह से मैच करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 है. 0 टेंस इज 0. सो इट्स प्लेस वैल्यू इज 0. ठीक है. 0 टेंस. नेक्स्ट है हमारा 63. 63 और आपको बताना है 6 का प्लेस वैल्यू. प्लेस पता कर लेते हैं. वंस, टेंस कौन सी जगह पे है? ये टेंस. तो 6 के साथ टेंस की वैल्यू जुड़ गई, हो गया 6 टेंस. 6 टेंस मतलब 60. ओके. यहाँ पर था 0 टेंस. 0 टेंस मतलब 0 ही होता है. 6 टेंस इज 60. ओके. 6 टेंस इज 60. सो वी हैव कंप्लीटेड दिस. ये भी हमारा पूरा हो गया है. Next, write the place value of each digit in tabular form. अभी tabular form क्या होता है वो भी आपको बता देते हैं. Let me take the chalk. तो chalk ले लेते हैं, फिर लिख लेते हैं. Question है, write the place value of each digit in tabular form. Write the place value of each digit in tabular form. आपको tabular form में बताना है. ठीक है. यू हैव टू टेल द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, मतलब सारे डिजिट का आपको बताना है. अब सारे डिजिट मतलब यहाँ एक पहला देखते हैं वंस, टेंस, 100. ठीक है. यहाँ लिखा है 5, 3 एंड 7. नाउ यू हैव टू टेल द प्लेस वैल्यू. 5 का प्लेस वैल्यू क्या है? 5 कौन सी प्लेस पर है? वंस की प्लेस पर है. सिंस 5 इज एट वंस प्लेस, इट्स वैल्यू इज 5. 5 वंस इज 5. ऐसे करके. 3 इज एट टेंस प्लेस, सो वैल्यू ऑफ टेंस विल बी अटैच्ड विथ 3. टेंस की वैल्यू 3 के साथ अटैच हो जाएगी. 3 टेंस हो जाएगा. 3 टेंस मतलब 30. Now number 7, it is at hundreds place, so value of 100 will be attached with 7 and 7 will become 700. 700. Okay, so these are the place values of these 3 numbers. Next, now let's see this one. यहाँ पर हमारा क्या है? 6 कौन सी प्लेस पर है? 6 है हमारा वंस की प्लेस पर. तो 6 क्या है? 6 वंस इज 6 only. Then 0 is at tens place. 0 tens is 0 only. 8 किसकी जगह पर है? 8 is at hundreds place. So 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 800. We will write 800.
बस हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया है किस तरह से प्लेस वैल्यूज करते हैं। ओके, लेट्स डू वन मोर। वंस, टेंस, 100, number is 2, 2, 4. Children, all this work is given on page number 31 of your maths book. आपके maths की बुक के पेज नंबर 31 पे ये दिया हुआ है। ओके, आइए लेट्स डू। इसका पहले देख लेते हैं, फिर इसका, और फिर ये। 2 is at ones place, so 2 ones is 2. The second number is also 2, ये भी 2 ही है और ये टेंस की प्लेस पर है, so value of tens will be with 2, so 2 tens is 20. 4 की प्लेस क्या है? 100. 4 is at 100's place, so 100 will be attached with this number 4. 4 will become 400. चिल्ड्रन, ये हमने प्लेस वैल्यूज़ लिखे हैं। ये जो फेस वैल्यू है सारे नंबर का, वो जो नंबर खुद ही उसका फेस वैल्यू जो हमें दिख रहा है, 6 का फेस वैल्यू 6 है, 0 का फेस वैल्यू 0 है और 8 का फेस वैल्यू 8 ही है। जो नंबर खुद जो नंबर दिख रहा है, दैट नंबर इज़ द फेस वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर 2 और 2 दोनों सेम नंबर है, दोनों का फेस वैल्यू भी 2 ही है। 4 का फेस वैल्यू 4 है, 5 का फेस वैल्यू 5 है, 3 का फेस वैल्यू 3 है, 7 का फेस वैल्यू 7 है। ओके, हम इसको अरेंज कर देते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। पेज नंबर है हमारा 32। पेज नंबर है 32, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स को कैसे फॉर्म किया जाता है। सबसे पहले आप एक बार रिवाइज कीजिए कि 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं। 3 डिजिट नंबर्स तो मैंने स्टार्टिंग में ही समझा दिया था। अगर कोई नंबर सिंगल है, अकेले है, उसके साथ कोई दूसरा नंबर नहीं है, सिर्फ अकेले है, तो उसको हम कहते हैं सिंगल डिजिट नंबर। क्या बोलते हैं? सिंगल डिजिट नंबर। कोई भी नंबर अगर अकेले है तो 0 से लेकर 0 to 9 तक के जितने भी नंबर्स हैं, दे आर ऑल सिंगल डिजिट नंबर। क्या है वो? सिंगल डिजिट नंबर्स, है ना। 0 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक अकेला नंबर, हर नंबर अकेले अकेले है, वो सिंगल डिजिट नंबर है। 10 के बाद से 10 से लेकर 99 तक जितने भी नंबर होते हैं, 10 से लेकर 99 तक जितने भी नंबर होते हैं वो डबल डिजिट या 2 डिजिट नंबर होते हैं। सिंगल डिजिट को हम 1 डिजिट भी बोलते हैं। ठीक है, 10 से लेकर 99 तक हमारे 2 डिजिट नंबर हैं। कैसे? देखिए, 1 ये 10 जब लिखते हैं तो 1 और 0 लिखते हैं, है ना। तो 2 डिजिट वाले, एक 0 हुआ, एक 1 हुआ। 10 के बाद आप जितने भी नंबर देखेंगे, 11 उसमें 2 1 है, 12 में एक 1 है, एक 2 है, 13 में एक 1 है, एक 3 है, 25 में एक 2 है, एक 5 है, 34 लिखेंगे तो एक 3 है और एक 4 है। मतलब 10 के बाद से जितने भी नंबर आप लिखते जा रहे हैं, जब तक आप 99 पे नहीं पहुंच जाते तब तक सारे नंबर क्या हैं? 2 डिजिट वाले हैं। मतलब एक साथ 2 नंबर लिखे जाते हैं, एक साथ
दो नंबर लिखा जाता है तो उसको हम बोलते हैं डबल डिजिट नंबर या 2 डिजिट नंबर। मतलब जब भी हम लिखेंगे दो नंबर को साथ साथ में लिखेंगे, पास पास में लिखेंगे, ठीक है, पास पास लिखेंगे, साथ साथ लिखेंगे और उसको साथ साथ पढ़ेंगे भी। जब हम लिख रहे हैं 24 तो उसको हम 24 नहीं पढ़ रहे हैं, उसको हम क्या पढ़ेंगे, 24 पढ़ेंगे। मतलब हमने पास पास लिखा और पास उसको साथ में पढ़ा, उसको पढ़ा भी साथ में। इसको 24 नहीं पढ़ेंगे, इसको 24 पढ़ रहे हैं। अगर लिखा है 38 तो इसको 38 नहीं पढ़ रहे हैं, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, 38। दोनों नंबर को मैंने क्लोजली लिखा है और एक साथ पढ़ रही हूँ 38 अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस वैल्यू। 3 30 है और ये 8 है, 38। यहाँ 2 20 है और ये 4 24। तो नंबर को साथ में लिखते हैं और साथ में बोलते हैं। और ये 2 डिजिट नंबर है जब दो नंबर एक साथ ऐसा होता है तो, ठीक है। 3 डिजिट नंबर में क्या होता है, 3 डिजिट नंबर 100 से शुरू होता है और 999 ट्रिपल 9। जितने भी नंबर हैं 100 से लेकर 999 तक, 999 तक, वो सब 3 डिजिट नंबर्स हैं। मतलब 3 नंबर्स एक साथ लिखे जाएंगे। मैंने आपको बताया था चाहे वो डबल डिजिट हो चाहे वो सिंगल डिजिट हो, 2 डिजिट या 3 डिजिट, नंबर भले ही रिपीट हो सकते हैं। डबल डिजिट में 2 डिजिट में दो नंबर एक साथ हो सकते हैं पर वो 2 डिजिट नंबर ही कहलाएंगे। मतलब 2 2 है, 4 4 है, 6 6 है, यहाँ नंबर रिपीट हो रहे हैं बट दे आर 2 डिजिट्स। एक 6 एक और 6, डिजिट तो 2 है ना, भले ही वो सेम डिजिट क्यों नहीं है लेकिन है तो 2 डिजिट। यहाँ भी भले ही नंबर सेम है लेकिन है तो 2 डिजिट। यहाँ नंबर सेम है लेकिन है तो 2 डिजिट, दोनों की वैल्यू तो अलग अलग है और दोनों को हम साथ में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे 2 की वैल्यू 20 है, इस 4 की वैल्यू 40 है, इस 6 की वैल्यू 60 है और इसको हम 66 44 22 एक साथ पढ़ रहे हैं। सेम इज़ फॉर 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर में क्या होता है, 3 नंबर्स को हम एक साथ लिखते हैं भले ही नंबर रिपीट हो रहे हों। जैसे यहाँ पर 0 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे नंबर 999 3 बार रिपीट हो रहा है लेकिन है तो 3 डिजिट्स, है ना, 1 2 3 1 2 3 है तो 3 डिजिट्स। और ये तीनों डिजिट को हम पढ़ेंगे तो एक साथ पढ़ेंगे। इसको मैं 999 नहीं पढ़ूंगी, इसको मैं 999 पढ़ूंगी। क्यों, ये 900 है, ये 90 है और ये 9 है, ठीक है, 999। सबके वैल्यूज़ अलग हैं तो पढ़ भी हम साथ में रहे हैं। तो कोई भी अगर 3 डिजिट नंबर है उसको लिखेंगे साथ में, उसको पढ़ेंगे साथ में। 2 डिजिट नंबर है, लिखेंगे साथ में, पढ़ेंगे साथ में। सिंगल डिजिट 1 डिजिट में तो एक नंबर होता है, एक ही नंबर होता है तो उसको तो पढ़ना भी वही है जो लिखना भी वही है, ठीक है। तो ये जो अब क्या होता है कि हम नंबर से ही और नंबर बना सकते हैं। वी कैन मेक मेनी नंबर्स। जैसे हमारा नाम है टॉपिक का फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स कैसे बनाए जाते हैं, नंबर्स कैसे बनाए जाते हैं। अगर सिंगल डिजिट है तो फिर नंबर नहीं बन सकते हैं, लेकिन जैसे ही 2 डिजिट होगा तो हम नंबर बना सकते हैं। अब जैसे आपके मैंने एक नंबर मैंने दिया आपको 2, एक नंबर मैंने आपको दिया। नाउ वी हैव 2 सिंगल नंबर, 1 is 2 and other one is 7. Now can we make 2 डिजिट नंबर? क्या हम इन दोनों अलग अलग नंबर से, मैंने कॉमा डाला, ये 2 अलग है ये 7 अलग है, एक साथ नहीं है, क्या इन दोनों नंबर से हम 2 डिजिट नंबर बना सकते हैं? और बना सकते हैं तो कितने 2 डिजिट नंबर बना सकते हैं? ये 2 है और ये 7 है, इनसे हम 2 डिजिट नंबर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? विदाउट रिपीट। अगेन बिना रिपीट किए हम 2 डिजिट नंबर बना सकते हैं। और कितने बना सकते हैं? देखिए 2 7 27, एक नंबर तो बन गया 27, दूसरा बन सकता है 7 2 72, है ना। 2 और 7 को साथ साथ में लिख दो, यहाँ तो कॉमा डाल के अलग अलग नंबर है ना, इनको हमने साथ में लिखा और साथ में पढ़ा। 27, 2 is 20 and 7 is 1, 27। यहाँ पर 7 को पहले लिख दिया और 2 को बाद में लिख दिया। 7 और 2 को पास पास लिखा और इसको क्या पढ़ रही हूँ मैं? 72। 7 10s 70, 2 1s is 2, 72।
ठीक है। तो ये हमारे दो नंबर्स बन गए, 2 नंबर्स वी हैव क्रिएटेड, वी हैव फॉर्म्ड यूजिंग दीज 2 डिजिट्स। अगर किसी 3 डिजिट नंबर बनाना है तो हमें किसी एक नंबर को रिपीट करना पड़ेगा। अगर 3 डिजिट बनाना है, इन्हीं 2 डिजिट से अगर 3 डिजिट बनाना है तो किसी एक नंबर को हमें रिपीट करना पड़ेगा। जैसे कि 2 7 7 अगर हो गया तो मैंने यहाँ 7 को रिपीट किया, है ना, तो 277 हो गया। 7 7 2 772। अगेन आई रिपीटेड दिस नंबर 7 को मैंने 2 बार लिखा, तब जाके मेरा 3 डिजिट नंबर हुआ। इसी तरह से 227 भी लिख सकती हूँ, 2 को रिपीट करके 227, ठीक है, समझ में आ रहा है। 227 भी हो सकता है, या फिर 272 भी हो सकता है, 272 भी हो सकता है, ठीक है। 727 भी हो सकता है, ये तो हाँ 727 भी हो सकता है। हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नंबर्स को रिपीट कर रहे हैं। 7 को 2 बार किया, यहाँ 2 को रिपीट किया, यहाँ 2 को रिपीट किया, यहाँ 7 को रिपीट किया, यहाँ 7 को रिपीट किया। तो अगर इन्हीं 2 डिजिट से मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है तो मुझे नंबर्स को रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे बोला जाए कि रिपीट नहीं करना है नंबर, तो फिर मैं इन दोनों नंबर से 3 डिजिट नंबर नहीं बना सकती, लेकिन 2 डिजिट नंबर्स तो बन सकते हैं। यहाँ पर 2 और 7 है, यहाँ पर 7 और 2 है, दोनों नंबर अलग अलग है, कोई नंबर यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये दोनों जो है इसमें से कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। 7 भी एक बार है, 2 भी एक बार है, यहाँ भी 2 भी एक बार है और 7 भी एक बार ही है। तो इस तरह से हमने 2 डिजिट सिंगल डिजिट लेकर 2 डिजिट नंबर्स बना लिए। सिंगल डिजिट से 2 डिजिट नंबर्स बनाए। ओके, नाउ दिस एक्सरसाइज वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल कंप्लीट दिस। ओके, और कुछ भी डाउट है तो आप क्लियर कीजिए मुझसे ऑनलाइन क्लास में। ओके, थैंक यू।